Hello dear students, welcome back to your own YouTube channel, The Learning Adda. So today we are going to talk about class 12 English. As you all know that class 12 board exams are knocking at the door and you people are scared to open that door. Today I am here to tell you how to open the door and score good marks. So as you all know, the paper is of 80 marks divided into 3 sections: A, B and C. A is reading portion, B is writing, and C is your literature. Now the bifurcation of the marks are as follows: reading is of 20, writing is also of 20 and literature is 40. So the main focus should be on this 40 marks. Now today I'll tell you some tricks, some you can say shortcuts, and how you can gain and score good marks in English. This is the last time. I know you people are in your revision portion, completed all your things, but just a pushback, just a reinforcement that will lead up to you and you will get good marks. Now, so we are going to talk about the writing skills in short. So, as you all know that writing skills talks about short writing and long writing. In short writing, we have notice writing and invitation. The format remains the same. As many of you people having a query that there is an additional paper that CBSE has launched and there is a difference in the notice writing, the pattern. But please follow the old pattern itself. We are going to follow the old pattern, that is name of the organization, place and then notice. Please use this old format only. Now, I won't tell you all the format of the writing skills. Now, as you are aware of the format, this is also 5 marks, this is also 5 marks. The bifurcations are 1 plus 2 plus 1 plus 1. Now, this whole is of 2 marks. Okay. Now, it is both, this 2 marks divided into 1 plus 1, that is, 1 is accuracy of spelling and 1 is organization of ideas. So, now this is the change that CBSE has brought this year. Organization of ideas and accuracy. Accuracy in spellings, you can say that, your vocabulary, use of grammar, but basically it will come under 2 marks only, expression. Now, so in short writing, notice writing is there, invitation. Invitation will be of 2 types, formal and informal. It will be in a format of reply as well, formal reply and informal reply. So these short writings are supposed to be in 50 words. Remember that. It comprises of 5 marks each but 50 words. You need to write in 50 words. That's it. Okay. Now, in long writing, we have 2 parts, article and report writing. Report, as we hear the word report writing, basically it focuses on 2 types of report writing. One is newspaper report writing and one is magazine report writing. Okay, 2 types of report writing. An article, simply one format is there, writing a heading and byline. That is writing your name. And you can start your article from it. But my suggestion will be that go with the report writing. As you have an agenda to talk about, you have to complete 5 W's, that is when, where, why, how, and what was the purpose of this report writing. So go with this report writing. Why? Because it will fetch you more marks. कैसे ज़्यादा marks आएंगे अभी हम देखते हैं. Now, in report writing, as I told you, there are 2 types of report writing. 2 तरीके का है. Now, first one is newspaper report writing. So, in newspaper report writing, now simply you need to focus on, for example, I am taking an incident that had happened yesterday, maybe car accident. Okay, कहीं पे कार एक्सीडेंट हो गया. Now you have been sent from the newspaper to cover the news. Fine. So who are you? I mean your name. For example,
I have been sent by my company, by my you can say newspaper to capture the news. So my name, maybe my designation is staff reporter, and then I'm working for Times of India maybe, or Daily Times, whichever newspaper you like most, you can give the name of that. Or else if it must be mentioned in the newspaper, in the question itself. Now, so what I have done here, मैंने क्या लिखा, जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, उसका नाम कवरेज करने के लिए कौन लिख रहा है, माई सेल्फ, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं गई हूं रिपोर्ट लेने के लिए, एंड देन माई डेजिग्नेशन, on what post I am working in the firm, you can say for the newspaper, and then the newspaper ka naam, Times of India. Now left hand side you need to write the date. For example, this happened yesterday, so 22nd February. Now make sure to write the same month that is going on. ठीक है, most of you what you do that you don't know the spelling of February, so you simply write May. I've seen this in my in my school. The students are writing the back day months, May, June or July. No, you need to write the current month that is running. Fine. Now, right after writing the date, you are supposed to write the place where the incident had happened, or maybe the accident had happened. So maybe the place is Lucknow. Okay. Sometimes it is asked there that to mention the time as well. So you can mention the time as well, like 10:30 a.m. and then the place Lucknow. And you may start writing your report. Now first paragraph talks about what was the incident all about, what had happened there. You need to brief the scenario, what had happened there and what you have seen. In 2 to 4 lines you can write. Now again in the second paragraph you can say merging the first paragraph with the second one. I'm leaving a line of course, but preceding with the thought that is there in the first paragraph. Second paragraph में आपको बस जो हुआ है रिपोर्ट राइटिंग, जो इंसिडेंट वहां पे जो हो रहा था उसको आपको ब्रीफ में उसको बताना है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ सॉरी, यहाँ पे जो चीजें आपने देखा लाइव आप देख रहे हैं, सो आप वो वहां पे बताएंगे. नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट इन रिपोर्ट राइटिंग यू आर ऑलवेज गोइंग टू राइट इन थर्ड पर्सन. आई मी नहीं लिखेंगे, हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे. रिपोर्ट राइटिंग हमेशा थर्ड पर्सन में होती है. Now and in the last it will be a concluding paragraph where you are going to conclude about the accident that has happened. You may give your suggestions, you may give your, you can say ultimate precautions that would have the driver would have taken. ड्राइवर ने अगर ये किया होता, स्पीड कम की होती, मे बी ही मस्ट हैव ड्रंकन, तो ड्रिंक करके नहीं चला रहा होता तो ये हो जाता. सो आपके अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटीज लगती है उसको आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ऐड करके अपने रिपोर्ट राइटिंग को एंड करेंगे. आई होप दिस फॉर्मेट प्लस the explanation is clear to you all, as many of you people face problem in report writing only. So report writing basically अगर newspaper वाला आ रहा है, so simply the heading by your name, आपका नाम, आप जिस न्यूज़पेपर में काम करते हैं वहां पर आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है वो, और उसके बाद जिस पेपर के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन है, क्या पोस्ट है और कहाँ काम करते हैं, ये 3 चीज लिखेंगे. एंड देन गिविंग अ लाइन, डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, टाइम एंड प्लेस. ये बेसिक फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग जो कि न्यूज़पेपर वाला है. फाइन. ओके, मूविंग अहेड क्विकली, I'll tell you the magazine report writing, the format of magazine report writing. Now, as simple as article you can say that, but different from article. The format remains the same. For example, not exactly same, little different. For example, if I say that there was an annual function in your school and you have been told to make, or you can say write a report writing on it. So basically giving the heading annual function, or maybe annual concert, you can say that, or maybe some kind of picnic or any blah blah topic. So annual function by, like if I am writing, so I'll write my name,
comma and class. You'll mention your class here, class 12A, fine, or maybe 12B. Is it okay? The format remains same. मतलब सिंपल, बिल्कुल एक लाइन में आपने हेडिंग डाला एंड देन द फॉर्मेट, योर नेम और आप किस क्लास को बिलोंग करते, डेट टाइम कुछ नहीं डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये मैगजीन वाला रिपोर्ट राइटिंग है और आपने मैगजीन में आपने लिख के रिपोर्ट दे दिया स्कूल को, स्कूल वो बाद में पब्लिश करेगा तो अब मैगजीन में जाएगा। सो डेट और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू सिंपली नीड टू स्टार्ट द पैराग्राफ गिविंग द इंट्रोडक्शन एंड देन लीडिंग द पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में उसको इलॉबरेट करेंगे, ब्रीफ पॉइंट्स देंगे एंड देन थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड कर देंगे अपने सजेशंस या प्रिकॉशंस देके। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। Okay, so we have seen notice writing. The format remains the same, although there is a change. I mean, CBSE has given an additional paper, sample paper, where the notice format is changed, but you people go for the old format only. Again and again, I'm telling you that go for the old format only. Now, notice we have seen 5 marks, no change in the format. Now, invitation for 5 marks. The word meaning remains the same for these two, 5 marks. Now, they will be choosing. 2 options will be given. Question number 1 and 2 for notice. And you have to do 1. Only 1. Fine. Now, invitation 5 marks. It can be, one can be reply to an invitation where you are accepting things, or one can be reply where you are declining, you are refusing things, you are unable to go to the party or somewhere. Now second will be inviting. You may get choices in this and you need to attempt 1. Fine. So this is short writing. Remember this is short writing, although it is of 5 marks, but short writing in 50 words. 50 words. So writing skills में हमारे पास 5 चीजें, 1 2 हो गई, तीसरी रिपोर्ट राइटिंग जो भी हमने देखा था फॉर्मेट मैगजीन और न्यूज़पेपर का रिपोर्ट राइटिंग है। नाउ देयर विल बी चूजिंग इन रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। रिमेंबर दिस, यू हैव टू डू ईदर ऑफ वन, यू कैन से 5 marks. Now both of them comes in long writing. ये दोनों जो हैं वो लॉन्ग राइटिंग में आते हैं। वर्ड लिमिट कितनी हो जाएगी? 150 से 200। Now, why I'm focusing on writing skills? Because this time CBSE has done a very good thing, that is given notice. The weightage of notice is 5 marks. Invitation is also 5 marks. Earlier, when we used to go copy checking for the last year and last year also, the notice and invitation was only of 3 marks. So the weightage was less and the content was so short. So this time if the CBSE has given weightage of 5 marks, you need to get that 5 marks anyhow. So these 20 marks are very easy to fetch, and you can fetch just writing the formats, basic formats, and following the format that you are going to write. So either of them. Okay, fourth is letter writing. Fine. Letter writing is also of 2 things, 2 categories. Writing to editor, where editor is a long one, where you need to solve, when you need to show the problems, discuss the problems. In the first paragraph, you need to discuss the problem, giving a brief view of the that is there in the question. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको उसको इलॉबरेट करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको फिर से अपने सजेशन देना है, अपने प्रिकॉशंस देना है, व्हाट द थिंग्स शुड बी डन सो दैट ये चीजें ना हो। एंड लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूड करेंगे और अपने लेटर को एंड करेंगे। नाउ वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा वेट, यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आई कम टू रिपोर्ट दिस एडिटर लेटर। सो दिस इज ऑल्सो 5 marks. देयर इज अ चूजिंग अगेन इन जॉब एप्लीकेशन एंड एडिटर टू लेटर टू एडिटर. So letter writing is also of 2 categories, you can say, divided into 2 categories, editor and job application. So now editor, and I was in this letter, editor letter.
सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, जब भी हम एडिटर को लेटर लिख रहे होते हैं, बहुत ही लंबा जाता है क्योंकि उसमें आपको पूरे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यू नीड टू एक्सप्लेन, गिव डिटेल्स इन अ लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट. यू कैन से दैट इट विल टेक 5 to 10 minutes टू फिगर आउट द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग एडिटर वाला ले रहे हैं हम पहले, ठीक है. सो सेम फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, लीविंग वन लाइन, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर, एंड देन दिस इज टू पुट इनटू योर नोटिस. या आई, do not start the letter with I. This is to put into your notice or into your head, whatever the lines that fits you or suits you. Now the thing is that why I am telling you not to attempt this letter to editor. Why? Because the content, the main body part requires basically 3 paragraphs, and that too in a long context. The first paragraph needs to be defined in a simple manner, where the problem is defined. जो भी लेटर में क्वेश्चन पूछा गया है वो आप पहले पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और आपने लेटर कहां से लिखा है. फॉर एग्जांपल पावर कट हो गया है आपके एरिया में, एंड यू आर सपोज टू राइट टू द एडिटर दैट प्लीज सी द मैटर एंड look into the matter and please help it out. Fine. So now आपने पहले पैराग्राफ में लिखा कि I am so and so belongs to this in Shivpuri area and there are frequent power cuts in my area, you can say. आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया. Now सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप उससे. पावर कट्स हो रहे हैं, लॉन्ग पावर कट्स हो रहे हैं, सो आप उस पावर कट से क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आसपास की कॉलोनी के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग इन दैट कॉलोनी. सो आपने फिर से सेकंड पैराग्राफ में लंबा चौड़ा सा लिखा, पूरा खट टाइप का बहुत लिखा. नाउ थर्ड पैराग्राफ में अगेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द, यू कैन से सजेशंस दैट यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड. ठीक है, सजेशंस लिखा आपने, प्रिकॉशंस लिखा आपने कि ये किया जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे होता तो ये चीजें हो जाती. सो आपने ये पूरा बड़ा सा लिख दिया, एंड देन लीविंग अ लाइन, थैंक यू बोला आपने, लीविंग अ लाइन अगेन, योर सिंसियरली, और अपना नाम दे दिया आपने. ना इन सब में कहीं को छूटा? यस, लास्ट पैराग्राफ में रह गया आपका what you need to write here that please put this article, this piece of writing in your esteemed newspaper column. Give it a blank column or give it a column in your newspaper so that the head of the departments, or you can say that moreover the Nagar Nigam or municipal corporation should read this article and help us. Now many a times I have seen that बच्चे लिख देते हैं please help us or please solve the problem, please look into the problem. Now editor कौन है, क्यों आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, has only the power of pen. उसके पास सिर्फ कलम की ताकत है. 1000 बार बोला है मैंने, बट ये मिस्टेक्स बार बार हो रहे होते हैं. एडिटर जो है उसके पास सिर्फ पेन की ताकत है, वो सिर्फ लिख सकता है. आपने जो आर्टिकल लिख के दिया है, आपने जो यहाँ पे इतनी लंबी बातें लिखी हैं, उसको बस अपने न्यूज़पेपर में वो एक कॉलम दे देगा, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा, एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रिंट, ही विल बी लाइक यू कैन से स्पोक पर्सन फॉर यू on your behalf. And then after that you can write there in the last paragraph after giving the suggestions, last में ending में 2-3 लाइन में लिखते हैं please give a bright column in your newspaper, please find the suitable column in your newspaper, that will be a great help. So आप इस तरह से लिखेंगे मोल्ड करके बातें कि आप एक कॉलम दे दीजिए अपने न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल को, हमारी बात को, so that जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनकी नजर पड़े इस पे एंड वो कुछ प्रिकॉशंस या कुछ एक्शंस ले सके. And that's it. You end your letter here. Thank you. Yours sincerely. Now एक बात बहुत ध्यान रखेंगे, yours में स्टॉफी नहीं होता है, S हमेशा स्मॉल रहेगा, sincerely का S स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा. No commas anywhere in your letter. Fine. This is not the format. कहीं भी कॉमा कुछ भी नहीं लगेगा,
ठीक है, और देन अपना आप नाम लिख के आप खत्म करेंगे। ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू नॉट टू राइट दिस लेटर, प्रेफरेबली लाइक फॉर एग्जांपल फ्यू स्टूडेंट राइट इट, नहीं मैम लिखना है, हम इसी को लिखेंगे, नंबर भी आपसे लेके रहेंगे, ठीक है फाइन चलो लिखो, लिख देते हैं बच्चे, बट इतना आपने कहा कि 5 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा आपको। आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज तो करेंगे ना भाई, कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पावर लॉन्ग पावर कट्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, अब आपको इसको फिगर आउट करना है, आपको आइडियाज ऑर्गेनाइज करना है कि क्या लिखना है लेटर में। भाई इतना लंबा तो लिख दिया लेटर को, क्या लिखेंगे आप इसमें। आपने पहला पॉइंट सोचा कि चलिए बोर्ड की पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पा रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों के एग्जाम बहुत पास हैं। सेकेंड आपने बोला कि रेफ्रिजरेटर में खाना बहुत खराब हो जा रहा है, ये पॉइंट आपने सोचा। थर्ड आपने सोचा कि बहुत गर्मी हो रहा है, फैन एंड एसी कूलर नहीं चल पा रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देन आपने ऐसे ही सोचा, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ मैंने सोचा 4, कुछ आपने सोचा, कुछ उसने सोचा 4, सो आपने मिला के चलो लिख लिया, 5-6 पॉइंट्स आपने लिख लिया। बट इन पॉइंट्स को सोचने में आपको टाइम तो लगा होगा ना, यू मस्ट हैव टेकन 5 मिनट्स, मे बी यू कैन से दैट, और या तो बहुत आप कॉग्निटिव आपका दिमाग चलता है तो आपने जल्दी सोच लिया 2-3 मिनट में। बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज करने में एटलीस्ट यू नीड 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आपने इसको अरेंज किया अपने आइडियाज को, ये आपने इसके प्रॉब्लम्स बताए, इसके फिर आप सॉल्यूशंस भी बताएंगे भाई कि कट रहा है लाइट तो क्या करना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या नगर निगम को, उसके आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी तो बताएंगे, आप प्रिकॉशंस भी बताएंगे। तो आपने 5 मिनट उसमें लगाया सोचने में, तो 10 मिनट अगर आपने सोचने में लगा दिया, और इतना बड़ा सा लेटर जो आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ का, इसको फिगर आउट और लाइन बना के लिखने में यू विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। सो 15 मिनट आपने उसमें लिखने में ले लिया भाई, तो 15 मिनट और 10 मिनट, यहाँ 25 मिनट, आधा घंटा आपने लेटर में ही लगा दिया। आपके पास 3 ही घंटा है, कौन सा 4 घंटे हैं आपके पास। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, एंड दिस इज द बेसिक रीजन दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू नॉट टू ऑप्ट और गो फॉर दिस जॉब लेटर टू एडिटर 1। और फिर भी अगर किसी का बहुत मन कर रहा है, बहुत बच्चे मेरे जो महान है वो लिखना चाहते हैं तो लिख ले, अटेम्प्ट कर ले जल्दी अगर कर पा रहे। तो मैंने ये रफ टाइम बताया है, कैलकुलेटेड टाइम नहीं है कि एस्टिमेट इतना ही लगेगा, नहीं मैम आप गलत बोल रही हैं। सो ले लो भाई अपना टाइम ले लो और लिख लो। सो यू कैन गो फॉर द, ऑलवेज गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज जॉब एप्लीकेशन। ना इसमें करना क्या है, फॉर्मेट तो सेम है जो हमने उधर लिखा है लेटर टू एडिटर वाले में। सेंडर्स एड्रेस, लीविंग अ लाइन, डेट, लीविंग अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, लीविंग अ लाइन, सब्जेक्ट, लीविंग अ लाइन, सैल्यूटेशन, सर लिख दिया आपने, एंड देन यहाँ से स्टार्ट किया आपका कवरिंग लेटर। ये जो लेटर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं कवरिंग लेटर। नाउ लेटर बहुत शॉर्ट होगा, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। Please ignore my handwriting as I am in a very hurry note. Please, with reference to advertisement in Times of India, dated 20th Feb. Now, ये जो 2 लाइन लिखा आपने, जो एग्जामिनर है आपका 2 चीज चेक करेगा, दैट वेयर यू हैव read for the newspaper, you can say for example I am applying for the post of PGT English, applying for the post of PGT English or whatsoever advertisement you have seen. मुझे PGT इंग्लिश ही दिखता है भाई, मैं PGT इंग्लिश हूँ तो मुझे PGT इंग्लिश दिखता है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया, सो the 2 basic things that you need to write in the first 2 lines is टाइम्स ऑफ इंडिया dated। ये 2 चीज को आप अंडरलाइन भी करेंगे, मेक श्योर भूलेंगे नहीं, अंडरलाइन करेंगे, फोकस पड़ेगा इस पे। अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन नहीं यूज करेंगे, ना ही पेंसिल यूज करें, कोई भी 2 ब्लू पेन लेके जाएं, एक डार्क एक लाइट, एंड देन डार्क वाले से अंडरलाइन कर ले जेल पेन से, लाइट वाले से लिखें आप, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे चाहो तो अपनी गुणगान गा लो, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, आई कंप्लीट ऑल माई वर्क, आई गिव माई 100%, जो भी आपको अपनी तारीफें करनी है, झूठी हो सच हो चलेगा, सब यहाँ पे तारीफें कर लिया आपने, एंड देन यहाँ पे आपने एंड कर दिया। और उसके बाद आपने एक लाइन लिखा कि आई एम इंक्लोजिंग माई रेज्यूमे फॉर योर रेफरेंस, आई एम इंक्लूडिंग और आई एम इंक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर रेफरेंस, लीविंग अ लाइन, थैंक यू लिखेंगे, ओके यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ,
थैंक यू लिखेंगे। एज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, प्लीज बी ग्रेटफुल एंड राइट थैंक यू। थैंक यू लिखना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि थैंक यू नोटिस में भी लिख देंगे, मैम ने बोला था इन्विटेशन में भी लिख देंगे, नहीं। आर्टिकल और रिपोर्ट में भी नहीं लिखना होता है थैंक यू, प्लीज सिर्फ लेटर में ही लिखते हैं थैंक यू, बट लिखेंगे जरूर थैंक यू। नाउ लीविंग अ लाइन, योर सिंसियरली, अगेन एस यहाँ पे लगेगा, छोटा वाला एस लगेगा, स्मॉल लेटर, योर सिंसियरली योर नेम, एंड देन इनक्लोज्ड सीवी, ये वर्ड लिखेंगे एंड देन आप लिखेंगे इनक्लोज्ड सीवी। सीवी, बायोडाटा, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, टाइम बचा रहा है, 2 वर्ड का सीवी है, सीवी लिख लो। बायोडाटा, रेज्यूमे जो भी है लिख के आपने, ये आपका कवरिंग लेटर जो है वो एंड हो गया ना। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज द बायोडाटा। यहाँ तक अगर लिख के आप छोड़ देंगे तो आपको 2 से 2.5 नंबर ही मिलेगा 5 में, ठीक है। 5 में 5 नहीं मिलेगा। 1 + 2 + अगेन 1 + 1, 1 + 2 + 2 है, इसका भी बाइफिकेशन, तो वहां तक लिख के छोड़ देंगे तो बस ये फॉर्मेट का भी आधा मिलेगा और इसका भी बस आपको आधा ही मिलेगा, सोच लो, यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यहाँ तक तो सिर्फ कवरिंग लेटर हुआ है ना। स्टार्टिंग विद द बायोडाटा। नाउ रिमेंबर वन थिंग, शॉर्ट राइटिंग जो होता है ना, नोटिस एंड इन्विटेशन, वो बॉक्स में आएगा। रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर राइटिंग नहीं आएगा, ठीक है, बॉक्स में। बट जब हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, उसका जो जॉब बायोडाटा बनाएंगे वो बॉक्स में आएगा एंड इट्स कंपल्सरी। ये आपने बॉक्स बनाया, हाँ, बायोडाटा को अंदर कर लो, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बॉक्स का प्लीज अलाइनमेंट थोड़ा देख लेना। यहाँ से हम शुरू करेंगे, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, लाइक जनरल आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उस पर जो भी डिटेल्स लिखे रहते हैं ना, बस वही लिख देना है। नेम, फादर नेम, फोन नंबर, ईमेल, फोन नंबर, ईमेल आईडी। फोन नंबर, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आज मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। सो ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज दे विल मेल यू थ्रू मेल, दे गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं सेलेक्ट हुए, ठीक है। सो मेल आईडी यू नीड टू गिव, योर फोन नंबर, देन योर हॉबीज, your interest, n number of things can come, like it can go. Now यहाँ पे एक चीज़ important है, आपने फिर यहाँ पे लिखा academic qualification या educational qualifications, educational qualifications। ना इसके, ये तो बॉक्स हमारा चल ही रहा है अभी, ठीक है। उसके अंदर एक बॉक्स बनेगा and this box is very important, fine। सो दिस विल बी लाइक फॉर योर, सीरियल नंबर लिख लो यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो आपने दिए हैं या बोर्ड्स जो भी है आपके, यहाँ पे क्लास लिख लो भाई, क्लासेस जो आपने दिए, यहाँ पे बोर्ड्स, कौन से बोर्ड से आप पास हो, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे परसेंटेज, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, फाइन। सो 1 नंबर पे मैंने 10th किया है भाई, बोर्ड्स का ICSE था, ईयर 2015 में किया है, सपोज 17 में किया, जो भी है परसेंटेज आपका जो भी है वो लिख दो। सेकेंड में आपने, आप इसमें हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट, लोएस्ट भी जा सकते हो, लोएस्ट से हाईएस्ट भी जा सकते हो, ठीक है। बट प्रेफरेबली यू शुड गो विद द हाईएस्ट डिग्री यू हैव एंड देन उसके बाद कम कम कम। फॉर एग्जांपल PhD किया है मैंने तो PhD लिखूंगी, आई एम परसुइंग PhD। सेकंड में यू कैन गो फॉर द, लाइक आई हैव डन माय मास्टर्स, तो मैं MA लिखूंगी। PhD मैंने कर रही हूँ तो PhD, फिर MA, फिर BA एंड देन मे बी B.Ed इसके पहले किया है मैंने तो मैं B.Ed यहाँ लिखूंगी एंड देन यहाँ पे BA ऑनर्स किया है मैंने, फिर उसके बाद 12 एंड देन 10। सो इतनी डिग्रीज हैं तो वो डिग्रीज के अकॉर्डिंगली आप फुलफिल करेंगे और यहाँ पे इसके कौन से ईयर में आपने किया है और परसेंटेज डालते जाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक अलग से बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ठीक है। विद इन द बॉक्स देयर इज अ बॉक्स, फाइन। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना। 2 थिंग्स इज रिमेनिंग, ये आपने लिख लिया पूरा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब हो गया ना, हॉबीज हो गया। उसके बाद यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, डोंट गेट कंफ्यूज, इसी में चल रहा है अभी सब कुछ ना। यहाँ पे फिर आप रेफरेंस, अचीवमेंट दे देंगे भाई, आपने बहुत कुछ ना कुछ अचीव तो किया ही होगा,
तो अचीवमेंट आप दे देंगे 1 2 वॉट एवर अचीवमेंट यू हैव डन। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप रेफरेंस देंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस, यू नीड टू गिव रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर गोइंग टू द पर्सन इज गोइंग टू इंक्वायर अबाउट यू। सपोज मैं सेलेक्ट हो गई और मुझे मेरे बारे में लोगों को जानना है, स्कूल को जानना है, जहाँ मैं काम करने आई हूँ फॉर्म में, उसको जानना है कि मैं कैसी हूँ, मेरा वर्क कैसा रहा है। सो दे विल कॉन्टैक्ट दिस रेफरेंस टू। सो आप कोई जानी पहचानी नाम जो आप जिसको जान रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं रेफरेंस 1 and 2 करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मैम को जान रही हूँ तो मैं लिखूंगी मिस अलका, यहाँ पे कोई भी जो उनका प्रोफेशन है, यहाँ उनका फ़ोन नंबर, यहाँ पे उनका नाम, एक फ़ोन नंबर, ठीक है। मिस्टर सूरज, जो भी है जिसको मैं जान रही हूँ, मैंने ऐसे लिखा एंड देन उसका नाम देके यहाँ पे कर लिया रेफरेंस, ठीक है। अचीवमेंट ये हो गया। और आप चाहो तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये 2 सालों से यहाँ पे APS में पढ़ा रही हूँ या 1 सालों से मैंने LPS में पढ़ाया है, जो भी। सो अपना एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर वो बॉक्स जो है मेरा वो बंद हो जाएगा। 1 by 1 करके चीजें आती रहेंगी, ठीक है। ओवरलैप मतलब यहीं से यहीं 1 2 3 करके चीजें आती रहेंगी। वर्क एक्सपीरियंस क्या आपने एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड बाय मी इज ट्रू, ठीक है। वो लिख सकते हो, जरूरी है जरूरी नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ तक आपने लिख के इसको एंड कर दिया, ठीक है। सो ये सब लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? वो जो कवरिंग लेटर आपने लिखा ना, मुश्किल से वो 2 लाइन रट के जाना, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 February 24 February। I would like to what do you say? I would like to pursue, I would like to offer my candidature, I would like to place my CV for the above mentioned sorry, एक कॉल आ रहा था, फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, फाइन। आई वुड लाइक टू प्लेस माय कैंडिडेचर, आई वुड लाइक टू ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। इस तरह से करके आपने वो 2-3 लाइन लिख लिया। चाहो तो टाइम बच रहा तो लिख लो आई एम पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, जो भी आपको लिखना है, बला 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 अपनी तारीफें एंड ऑल। सो वो एक पैराग्राफ मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगेगा वो फॉर्मेट के साथ वहां तक लिखने में, 4 मिनट ले लो भाई, ठीक है। और ये जो आपको लिखना है, ये आपने सारे हेडिंग्स दिए और यहाँ पे आपको नाम लिखने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि इसमें सोचना नहीं है आपको। नाम लिख दिया, मदर्स नेम कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सुनीता हो गया, फादर्स नेम कुछ भी लिख दिया। आपको मैथ्स तो ना वो करने आ रहे, वो सिर्फ आपको फॉर्मेट देख रहे हैं, वे ऑफ राइटिंग देख रहे हैं इंग्लिश में। आकाश लिख दिया, फोन नंबर XYZ 000122 लिख दिया, ईमेल अपना कुछ भी लिख दिया आपने, हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया, इंटरेस्ट रीडिंग बुक्स लिख दिया, यहाँ पे मार्क्स भर दिया। ये करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 8 से 9 मिनट लगेगा, लगा लो शर्त। 8 से 9 मिनट में आप जॉब एप्लीकेशन खत्म कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ जॉब एप्लीकेशन, प्लीज गो विथ जॉब एप्लीकेशन। सो हियर इट वाज फॉर 5 मार्क्स। नाउ क्विकली जल्दी से अब हम एक टिप्स बताऊंगी मैं तुम लोगों को राइटिंग स्किल के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बट पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आई वाज बिजी विथ माय ओन एग्जाम्स। सो आई जस्ट टेल यू द ट्रिक्स और यू कैन से टिप्स। बच्चे मेरे से बहुत मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम कैसे लिटरेचर क्वेश्चन करना है और कैसे हम नंबर लिटरेचर में ला सकते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम टू गिव यू द जिस्ट ऑफ एवरी चैप्टर, आई वांटेड टू गिव यू, बट अभी अपलोडिंग होने में टाइम ही लगेगा एंड ऑल। सो मैं बस आपको ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से, बेसिकली मेरा फोकस था कि राइटिंग में आपको 20 में 20 आना है, ये 20 में 20 आपको राइटिंग में आना है, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग, तो रीडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पहले जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप रीड करें एंड देन जितना बड़ा सा पैसेज होता है उसको पढ़ लें आप, ठीक है। सो आपने रीडिंग के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, फिर रीडिंग आपने पैसेज कर ली, तो आपका 20 नंबर वो हो गया, ठीक है। ये 40 हो गया। नाउ 40 ऑफ लिटरेचर, बट हम उसको पैराफ्रेज समराइज नहीं कर सकते हैं अभी, शॉर्टेज ऑफ टाइम। बस जनरली आई टेल यू हाउ टू गेट मार्क्स। पहली चीज तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, आ रहा है नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर एट ऑल। आपको बस क्या करना है कि आपको लिखते रहना है, लिटरेचर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर, फॉर एग्जाम्पल कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट यू विल डू। फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सडाओ राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस ऑफ रेस एंड कंट्री टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग इन नीड।
अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया भाई क्या करना है इसमें। डॉक्टर सडाउ समझ में तो आ रहा है ना कि डॉक्टर सडाउ कहाँ का है, एनिमी चैप्टर का है, ठीक है। ये प्रेजुडाइजेस पता नहीं मीनिंग क्या होती है, रेस क्या है पता नहीं, कंट्री क्या है समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, लिख दो भाई, ठीक है, 2 पेज का। जिसको समझ में नहीं आया 5 मार्क्स का। व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर दीज काइंड ऑफ आंसर्स, और आंसर आ रहा है उसको अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें मैं बताऊं। पहले जिसको नहीं आ रहा है ना, इफ यू डोंट नो बट यू नो दैट डॉक्टर सडाओ belong to he is a character of you can say chapter enemy, ये तो याद होगा ना, कैरेक्टर्स नेम तो याद है ना सब चैप्टर्स के, ठीक है। डॉक्टर सडाओ एनिमी, जैसे डॉक्टर सडाओ आया मैंने एसोसिएट किया कि ये एनिमी चैप्टर से हम ना। आई जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर, मुझे कुछ दिख रहा है इसमें लाइंस में, प्रेजुडाइजेस ऑफ रेस एंड कंट्री टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग इन नीड, ह्यूमन बीइंग इन नीड की बात कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग इन नीड की बात कर रहा है, ठीक है, कि सडाउ ने एक ह्यूमन बीइंग की जब वो जरूरत में था उसकी हेल्प की। अब फिर भी नहीं आ रहा है मेरे बच्चों को, तो क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट विथ राइटिंग द थीम ऑफ द चैप्टर, एज सिंपल एज दैट। चैप्टर का थीम आपने लिख दिया, सजा के लिखा, इंग्लिश बना के पूरा थीम मैसेज लिखवाया है मैंने, रट के जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, थीम मैसेज पूरा लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूछने का टाइम है नहीं क्योंकि लॉन्ग आंसर है, छोड़ना तो है नहीं, तो मैसेज लिखेंगे, थीम मैसेज, एंड देन अल्टीमेटली 2-3 लाइन इसके बारे में लिख देंगे। डॉक्टर सडाउ कैसा था, उसने किसको बचाया था उसने, टॉम को बचाया था, अमेरिकन सोल्जर यूएस, ठीक है। तो ये लिख देंगे और इस तरह से आप 5 नंबर क्वेश्चन को एंड करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है भाई साहब, करके सब आना है ना। गोइंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जिसको नहीं आया था ये उसके लिए था कि थीम मैसेज लिख के चैप्टर्स को वाइंड अप करके खत्म कर देंगे ना। जिसको आ रहा है फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन और वैल्यू इससे क्या मिल रही है हमें इस चैप्टर से, उस तरीके से लिखेंगे ना। एक तरीका होता है आंसर लिखने का, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जनरल सिनेरियो से। आज के टाइम में जो वैल्यूज इस चैप्टर से हमें मिल रही है उस वैल्यूज को और जो चैप्टर से मिल रही है उसको रिलेट करके लिखेंगे आप। सो फॉर एग्जाम्पल एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हेल्प अ पर्सन हु इज इन नीड, जैसे वो कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सो जरूरत के पड़ने के टाइम पे जो फ्रेंड काम आए वही फ्रेंड है, वरना तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, ये तो एक बन गया है, ठीक है। सो वैल्यू जो हमें जनरल मिल रही है इस चैप्टर से, वी शुड हेल्प एवरी पर्सन नो मैटर हूसोएवर ही इज, मे बी वो दूसरे कंट्री का हो, हमारा एनिमी हो, जो भी हो, जो ह्यूमैनिटी वाला काम करता है, जो हमें हमारा अंदर का जिनसे अंतरात्मा जो ज़मीर कहता है वो करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें नो मैटर कोई भी हो हमें इसको हेल्प करना चाहिए। तो जो चैप्टर से वैल्यू मिल रहा है ना हमें, वो वैल्यू पहले आप लिखेंगे 2-3 लाइन 4 लाइन की। इन प्रेजेंट सिनेरियो वी सी दैट वी शुड हेल्प द पीपल हु आर इन नीड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ सेल्फिश मोटिव, और इस तरह से बना के आप 4-5 लाइन वैल्यूज लिखेंगे जो आपको प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको 3-4 आपने लाइंस इलॉबरेट किया, और लास्ट पैराग्राफ में थीम मैसेज एक लिन का लिख के आपने कंक्लूड कर दिया आपके इस 5 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि कह रहा था हाउ डिड डॉक्टर सडाउ राइज अबव नैरो प्रेजुडाइजेस ऑफ रेस एंड कंट्री टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग इन नीड। किस तरह से डॉक्टर सडाउ ने हेल्प किया था, वो यूएस अमेरिकन जो आया था उसकी हेल्प कर रहा था, अपने जो रेस यू कैन से दैट अपना जो कम्युनिटी जो चल रहा था, डॉक्टर था वो didn't wanted to help because he was the enemy, उन सबको एक साइड में रख के उसने एक काम क्या किया, ह्यूमैनिटी निभाया। उसने अपना प्रोफेशन नहीं देखा, ऑल्दो ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो उसको तो हेल्प करनी थी, बट उन सब चीजों को वो साइड में करके उसने क्या चूज किया, उसने ह्यूमैनिटी चूज किया, एंड देन ही हेल्प दैट पर्सन। इनफैक्ट हैना आल्सो सर्व्ड हर, एंड देन सब लोगों ने मिलकर उसको ठीक करके उसको भेज भी दिया। सो इतनी बातें नहीं लिखनी है कहानी, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कहानी क्या थी। सो वैल्यू जो आपको जनरल लाइफ से मिल रही है वो लिखेंगे, प्लस उसी क्वेश्चन को इलॉबरेट करेंगे इन अ सीक्वेंस जो आपको पूछ रहा है, एंड देन लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे हल्का सा थीम मैसेज देके, जो बातें बोलना चाह रहा है क्वेश्चन उसको आप लिख के एंड कर देंगे। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन में आप 5 में से 4 4.5 नंबर तो ला ही सकते। दिस वाज अ स्मॉल ट्रिक यू कैन से दैट, और लास्ट मिनट रिवीजन जिसको बोल सकते हैं कि मैम ट्रिक दे दीजिए क्या करना है। सो वैल्यू हर एक चैप्टर का आपको पता है, हर एक चैप्टर का, लॉ स्प्रिंग हो चाहे वो 3rd लेवल हो, स्केप चाहिए था 3rd लेवल में, तो आज के टाइम में भी लोगों को स्केप चाहिए अपनी प्रॉब्लम से, डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे वांट टू रन फ्रॉम देयर प्रॉब्लम।
सो जनरली व्हाट यू नीड टू डू इज, कोई भी चैप्टर का जो वैल्यू उसको आप रिलेट करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो से, वो लिखेंगे, क्वेश्चन को और ज्वाइन करेंगे एंड देन एंड करके उसको छोड़ देंगे. सो दिस वाज ऑल द ट्रिक एंड टिप्स फॉर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम. एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल बी देयर टू हेल्प you out. Okay, so this is what I have told you all about writing skills, literature and then reading skills. So that's it for today's video and I wish you all the very best. Do well, give your 100% and just rock in your English exam and just try to score as much as you can. English exam is not at all tough. You can fetch 80 out of 80 also. Thank you so much.